is Assalamu alaikum, everybody. Good afternoon once again. Thank you so much for tuning in. So our guest of honor is here, and thank you so much to each and every one of you. It's 2:04 here in Saudi Arabia, so we will wait for a couple of more minutes before we start. Once again, thanks to Mrs. Nikhat Jamil, our co-founder, the co-founder of Padho and Padhao. As you all may or may not know, it's almost been 3 years since we started this initiative of Padho and Padhao, and it all started back in 2020. जब COVID हुआ था यहाँ Saudi Arabia में, it was in its full peak, and all the kids were at home. They did not have any, summer schools or schools. तो हम लोगों ने ये initiative शुरू किया था, where the older kids were getting involved and taking all sort of classes for the younger kids. And इस तरह से ये evolve हुआ in these last couple of years कि हम लोगों का network यूं बढ़ गया कि we had a lot of adults join our program as well. और हम लोगों ने बहुत सारे open discussions, special discussions किए. And what we have today is indeed a very, very special discussion, extremely close to my heart, because my mother, Mrs. Rukhsana Mohsin, is here, who for me, I think she's one of the best designers I have ever come across, and she is being interviewed by her daughter-in-law, Sana Arabi, who also has many feathers in her hat, and number one being that she's the founder of Jadda Super Readers. So thank you for each and every one of you for logging in today. It is so nice to see all of you. A happy Women's Day to each and every one. And can we, Sana, shall we start, please? Yeah, sure. Assalamu alaikum. Happy Women's Day, everyone. Assalamu alaikum, everybody, and welcome to this very special Women's Day event of Padho and Padhao. Thank you so much, Ms. Nikhat, Ms. Sana Junaid, and Ms. Samira for giving me the privilege and the honor of being here. And it's, first of all, Women's Day is such an important day. It's so important to celebrate this one day, which kind of highlights the social, the economic, the cultural, and the political contributions of women from across the world. And one of the other special qualities of Women's Day is that it helps to raise awareness about gender disparities across the world, about the discriminations that happen against women, about, we get to talk about the role that women play in society. So in this context, our main guest, as Ms. Samira just mentioned, our main guest today is a lady जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे, first of all, as a housewife, and that was one of the first achievements of her life, and which I feel is an achievement of every woman. Like I said, Women's Day is important to celebrate the social, economic, the cultural, and the psychological impact that women have. And a lot of women, when they are just in their homes, building a home, घर के काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, they think it's not valued enough. Not realizing that if you hire a cook, if you hire a cleaner, if you hire a nanny, if you hire a tutor, just think of the amount of money you would be paying all of those people. So being a housewife, being a homemaker is the biggest achievement that all of you can do. And that was Mrs. Rukhsana Mohsin's first achievement, that she spent the first few decades of her life raising her children, building her family, and creating a beautiful home for her family members. Or iske baad, after that was successfully established, and when she was ready to bear the fruits of that achievement of hers, unka agla maqsad, unka agla achievement ye tha कि उन्होंने I think उनकी वॉल्यूम नहीं चल रही है.
think she's trying to fix it. Okay. उनका दूसरा अचीवमेंट ये रहा कि उनकी जिंदगी भर का जो एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, to be a fashion designer. She finally was able to see that dream come to life. So, but did she end up being just a fashion designer? No, her dream was not just to create designs for her own personal satisfaction. No, she opened up a boutique that promoted 100% local artisans, local handicrafts, or usse bhi zyada, she sought out to find girls from lower socioeconomic backgrounds and to help them to facilitate their education, to facilitate their skills, to give them the confidence to be able to step out and designing provide their families independently. Live interview aa raha hai. She did thereby get involved in a lot of other projects, and we will give her the opportunity to talk about all of those. First of all, and I'm also very proud to say that she's my mother-in-law, and she's a huge source of inspiration for us and all of us in the family. Mrs. Rukhsana Mohsin, आप unmute कर सकती हैं, and can you turn your camera? Can you turn your camera? जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Happy Women's Day. आवाज आ रही है? बहुत ही सना आपकी स्लो आवाज आ रही है. It's okay, हमें आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, मगर हम जो आप पूछेंगी तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे. नहीं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आप लोग बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ो पढ़ाई की टीम को, जिसमें सना जुनैद, तिघत एंड सना समीरा एंड सना अरबी हैं. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के अपनी कुछ बातें शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं, और मैं उसके लिए तैयार हूं. और आप सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पैबंद की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका ये ख्वाब तो हमेशा से था बुटीक शुरू करने का, तो फाइनली आपने क्या एक फैक्टर था जिसने आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर था कि अब आप ये शुरू करेंगे? नहीं, ये तो पैबंद एक्चुअली बस जब हम लोग 36 ईयर से बाहर थे, और जब हम लोग बाहर थे तो मैं अक्सर इंडिया आती थी और यहाँ आके देखती थी बहुत बुरे हालात थे लड़कियों के, खास तौर पे. मैंने ये सोचा कि जो लोग आदमी लोग थे, जो लड़के थे, वो तो कामों पे निकल जाते हैं, मगर लड़कियों की हालात जो उसमें सुनती थी तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी कि उनके घर के हालात ऐसे होते थे कि वो लड़कियों को 8वीं तक पढ़ा देना बहुत बड़ी बात होती थी उनके लिए, कि वो 8th क्लास तक पढ़ ली तो उनके लिए ये हुआ था कि बहुत हमने पढ़ लिया. और उसके बाद उनको ये लगता था कि नहीं, अब घर में बैठना है और अब शादी के उसके लिए इंतजार कर रहे होते थे वो. और कुछ लड़कियां तो ऐसी थी कि जो जिनसे मैंने बात करी कि वो कुछ बनना चाहती थी, वो कुछ आगे बढ़ना चाहती थी. तो उसके लिए फिर मेरे ये दिमाग में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 11 साल या 12 साल बेचारियां पढ़े, इसलिए मुझे था कि वो नहीं पढ़ पाएंगी. तो उनके लिए एक मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि कम टाइम में वो थोड़ी सी उनको एजुकेशन का भी इल्म हो जाए, थोड़ी सी उनको मतलब उसके अपने किस तरह से अपने आप को लोगों में उठना है, बैठना है, बात करना है, उनको हुनर आना चाहिए. तो कम से कम टाइम में मैं चाहती कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख लें. और बहुत हद तक वो कोशिश कामयाब भी रही कि जो लड़कियां बेचारी जिनके साथ बहुत मजबूरियां थी तो उनको हम बुलाते थे और उनको अपनी तरफ से कैसे तुम्हें उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे अपने आप को हेल्दी एंड हाइजीनिक पे भी मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया कि कैसे सुबह उठ के साफ सुथरी आप लोग होके आना है, और कैसे अपने हिसाब किताब जो जिसमें महीनों सालों लग जाते हैं वो कम से कम टाइम में उनको सिखाया. और बहुत हद तक मुझे उस बात की खुशी होती है, सबका तो मैं नहीं कह सकती, मगर काफी हद तक वो लड़कियां आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं और काफी कुछ अपने काम और में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे देख के बहुत खुशी होती है
कि ये वही लड़की है जो आई थी जिसको बिल्कुल भी अपना ठीक से ड्रेसअप नहीं होती थी, ठीक से बात नहीं कर पाती थी, इतनी डरी सहमी। और अब वो उससे जब बात करो तो उसको लगता है मुझे अब कुछ बनना है। जो भी उन लोगों के रिसोर्स हैं या जो हम लोग रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करते हैं, तो काफी हद तक वो कोशिश कर रही होती हैं कि हम कुछ आगे बढ़ें और अपना कुछ अपने कुछ सेल्फ मतलब अपने आप को कुछ बताना चाहती हैं वो। और उनमें बहुत हद तक कॉन्फिडेंस भी आया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बहुत बहुत बहुत। बड़ी बात है ये, बहुत ज्यादा। आप ये बताइए मम्मी कि ये पैबंद नाम आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए पैबंद तो मुझे बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा नाम लगता था। जब मैं वहां थी जद्दा में, जब मैं सोचती थी कि मैं जब भी नाम रखूंगी तो पैबंद रखूंगी। इसका तो मतलब क्या है? हेलो, आपको आवाज आ रही है? तो आपको पैबंद आवाज नाम आ रही मतलब है? पैबंद मीन जोड़ना। अच्छा। मतलब पैबंद मीन्स जो होता है वो ऐसा होता है कि किसी भी चीज को जोड़ना। तो वो जी। मेरे चीज दिमाग में आई कि हाँ क्यों ना लोगों को इसी तरह से जोड़ें। ये पैबंद मैंने इसीलिए शुरुआत करी कि इसका नाम हम पैबंद रखते हैं। और मेरा इंटेंशन यह था कि मैं हर तरह के लोगों को जोड़ूं, और उसमें जितने भी लोग उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब भी रही। जैसे ही मैंने शुरुआत करी, मैंने एक किसी से कहा कि मैं ऐसा करने वो एक पूरी टीम लेके आ गए। जिन साहब से भी मैंने कहा, वो कह रहे थे कि जब आप इस तरह का काम कर रही हैं तो हम लोग सब आपके साथ हैं। और वो लोग पूरी 10 लोगों की टीम थी जो उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ है। और वो लोग मतलब कहते हैं जब कोविड हुआ तो जब भी वो था कि नहीं परेशान हो रहे थे, मगर उन लोगों ने उसके बाद था मैं मुझे ये था कि पता नहीं ये लोग आएंगे जुड़ेंगे मेरे साथ नहीं, सब लोग अपने अपनी जगहों पे काम शुरू कर देंगे। मगर देखा तो जब जैसे ही सब ये खत्म हुआ, कोविड खत्म हुआ, तो सब पूरी टीम साथ खड़ी हुई थी। जो भी उन लोगों को प्रॉब्लम्स आई, और ऐसे वक्त अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह भी मदद भेजता है उन लोगों का। तो उससे भी वो लोग बहुत खुश हुए, सभी ने उनका साथ दिया, जिसमें मेरे बच्चे भी हैं, मेरे सब बहन भाइयों के उनके बच्चे भी हैं, और समीरा, साद, सना, ये लोग सब ने बहुत मदद करी। और भी मिलने वालों ने, सब ने, कि उस टाइम अब जब मैंने शुरुआत करी तो वो लोग सब मेरे साथ थे। और जो मैं चाहती थी कि धीरे धीरे जो पैबंद एक दिमाग में आया था कि एक तो रसूलुल्लाह को भी नाम बहुत पसंद था, और उसके अलावा ये था कि जब एक इंटेंशन ये था कि मुझे सबको जोड़ना है, जिसमें हर तरह के लोग हों, और हर तरह की लड़की हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, जिनको थोड़ा बहुत काम नहीं आता है। और उसके लिए मैंने जिसको जो जो भी जिसमें हुनर था, वो जरूरी नहीं था कि सिर्फ सब एक स्टिचिंग ही कर रही हैं या सिर्फ एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो सब तरह का उन्होंने काम है ना सीखा यहाँ। बहुत खूब। चले, तो आपने ये शुरुआत तो की इस प्रोजेक्ट की, फिर इसके बाद आप बहुत ज्यादा बहुत जल्दी आपका नाम कैचअप हुआ इस वजह से, क्योंकि आपके डिजाइन्स से जब आपके कपड़े लोग पहनते हैं तो उनको लगता है कि आपके डिजाइन्स और आपकी स्टिचिंग लोगों को बहुत फ्लैटर करती है, लोगों को बहुत सूट करती है। और यही आज का टॉपिक है कि टू लुक गुड, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। तो आप ये बताइए कि कपड़ों का इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी और हमारी कॉन्फिडेंस पे कितना होता है? हाँ देखिए, बहुत कुछ होता है। जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ही महंगे कपड़े पहने, बहुत कपड़े अपने मेरा ही सबसे ये कहना होता है कि अपने बजट को आप पहले अपना बजट बताइए। और जब वो लोग अपना बजट बताते हैं तो उसी हिसाब से हम डिजाइनिंग करते हैं, ताकि उस बजट में भी आप अच्छा ड्रेसअप हो सकें, अच्छा दिख सकें, और अच्छा अपने आप को अच्छा पेश कर सकें। चाहे वो शादी के ड्रेसेस हों, चाहे रोजमर्रा के ड्रेसेस हों, जरूरी नहीं है कि आप उस पे हजारों रुपए। जब किसी शादी के ड्रेसेस मेरे पास आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अपने घर में जितनी भी पुरानी साड़ीज हैं, जितने दुपट्टे हैं, जितने, वो आप लेके आइए। मैं पहले आपको वो डिजाइन करूंगी, फिर आप जाके नए खरीदिए। तो उससे वो लोग इतने खुश होते हैं, इसी बहाने उनके जो कपड़े रखे हुए होते हैं उसको वो लोग यूज में कर लेते हैं। वो मैंने अपने मदर से सीखा कि वो किस तरह से पुराने ड्रेसेस को या पुरानी चीजों को
या जो लोग कपड़े नहीं पहन रहे थे शादी में 10 ड्रेसेस उनको होता था, वो बना के देती थी उसको कंप्लीट करके। और वो इतना और उनका वो जो एक संदूक था वो भरा रहता था माशाल्लाह। कितनी लड़कियों के वो जोड़े, वो 10 जोड़े कितनी लड़कियों के काम आए हैं। जो हम लोग पहन नहीं रहे होते थे उसको वो बहुत अच्छे से, ये नहीं कि उसको ऐसे उठा के दे दिया, नहीं, उसके लिए नई शलवार है तो दुपट्टा बनाएंगी, दुपट्टा है तो कुर्ता बनाएंगी, उस पर टकन भी करेंगी, उसको इतनी अच्छे से पैक करेंगी कि जिस तरह से शादी में जोड़े दिए जाते हैं तो वो उनको दिए जाते थे। तो अपने आप को, ये जरूरी नहीं है अच्छा लगने के लिए कोई बहुत महंगे ड्रेसेस हो, बहुत ही ज्यादा उस पर खर्चा कर सकते हैं। होता है कभी दिल चाहता है कि एक एक ड्रेस हम महंगा भी लें, हम बहुत ऐसे लगे, मगर नहीं, मुझे अपना ऐसा लगता है कि हाँ, आप कम उस पे भी अपने आप को कितने अच्छे से ड्रेसअप अपने आप को दिखा सकते हैं, कितने अच्छे से ड्रेसअप हो सकते हैं। अच्छा, तो आप कुछ स्टाइलिंग टिप्स बताएंगे कि डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे क्या सूट करता है? किस टाइप के कपड़े जैसे कोई बहुत ज्यादा लंबा, किसी की बहुत ज्यादा हाइट है तो उनको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, या हाँ, अलग नहीं, अलग वो बॉडी तो टाइप्स पे क्या सूट करता है? बहुत मुझे उस बात की खुशी होती है जब हमारे पास लेडीज आती हैं तो वो पूछती हैं कि आप बताइए कि हमें कैसा ड्रेसअप होना है। तो जो लेडीज बहुत हेल्दी होती थी, वो इतनी फिटिंग के कपड़े पहन रही होती थी और इतना, अब वो कुछ ज्यादा ही लूज कपड़े पहन रही होती हैं। उनको मैं कहती हूँ इतने ज्यादा लूज ना पहनने के लिए, नहीं, आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा हाँ, इतने लूज पहने कि आपके ऊपर वो अच्छे लगे। सब बहुत सी लेडीज ने वो फिटिंग्स के कपड़े पहनना और वो सब करना। अगर आप हेल्दी हैं तो थोड़ा सा लूज स्टाइल पहनिए, अगर आप दुबली हैं तो उसी हिसाब से, अब अपनी बॉडी के हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके अपने, कहीं भी आप जा रही हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर क्या चीज अच्छी लग रही है वही आप पहने, वही कलर आप पहने, उसी तरह से आप ड्रेसअप हों। अच्छा, तो आप किस टाइप के और कुछ टिप्स देती हैं अपने क्लाइंट्स को जब वो आते हैं, या जैसे कोई लड़की आ रही है उसको अपने शादी के लिए बहुत सारे कपड़े बनाने हैं, तो आप किस टाइप की टिप्स उनको देती हैं कि वो किस तरह से अपनी बेस्ट अपना ट्रू शो कर सकती हैं सेट? सना, आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आवाज आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ, थोड़ी आ रही है। जी, मैं कह रही थी जब कोई नई लड़की जैसे शादी करने वाली होती है तो आप उसको उसके जहेज के हिसाब से क्या टिप्स देती हैं कि उसको किस टाइप के कपड़े अपने लिए बनवाने चाहिए? हाँ, मैं सबसे पहले, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था कि हर तरह के कपड़े इतने इतने बना दिए जाते थे, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, इतने ड्रेसेस मत बनाओ। और अगर कोई लड़की बाहर जा रही है तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी मना करती हूँ, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां अपने कपड़े संदूक में या अलमारी में रख के जाती हैं। तो उन लोगों को मैं ये टिप देती हूँ कि कम से कम कपड़े हों और वो वाले कपड़े बनाओ कि जो आजकल के फैशन के हों, और जहां आप जा रही हो वहां किस टाइप के लोग हैं, किस तरह से आपको अपने आप को ड्रेसअप करना है, उसी हिसाब से आप कपड़े लीजिए। बहुत ज्यादा ये नहीं कि बहुत हैवी कपड़ों को मैं मना करती हूँ कि बहुत ज्यादा हैवी कपड़े ना बनाएं। जो जरूरत के हैं, हाँ, शुरू में जैसे होता है आपका बारात का जोड़ा होता है, वलीमे का होता है, 3-4 दिन कपड़े और होते हैं जो आपको पहनना होते हैं, तो जरूर आप बनाइए, हैवी ड्रेसेस बनाइए, मगर बहुत ज्यादा नहीं बनाइए कि आप उसमें। तो मैं उनको ये टिप देती हूँ कि बहुत जरूर कम ड्रेसेस बनाएं और ऐसे ड्रेसेस बनाएं जो आप पहन सकें बाद में भी। तो और ये बदलते उसमें सीजन्स के कॉटन के भी हिसाब हों, से उसमें। कैसे फैशन, बदलते सीजन्स के हिसाब से कैसे फैशंस चेंज होते हैं? कि क्या जरूरी है कि आप अलग अलग टाइम पीरियड्स पे साल में अलग अलग तरह के कपड़े पहने? सना, सॉरी, पता नहीं क्या नहीं, आप सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, मैं रिपीट करती हूँ कि जब बदलते सीजन्स के साथ कैसे लोग अपने आप को अडेप्ट करें, अपने फैशन को और अपने स्टाइल को। हाँ, तो देखिए, वो तो बहुत जरूरी है। पहले जब समर सीजन आता था तो हम लोग है ना, गुलाब के फूल लगा लेते थे लोग, और वही उनका फैशन होता था। वाइट कपड़े पहने हैं, चिकन के पहने हुए हैं, मलमल की दुपट्टे ओढ़े हुए हैं, तो उसमें भी एक बहुत ही खूबसूरती हुआ करती थी कि देखिए, हम लोगों को ये लगता था कि अरे, ये हमारे तो आंखों में ठंडक पहुंच रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मौसम के हिसाब से ही ड्रेसअप होना चाहिए कि अगर पेस्टल्स कलर हैं वो आप समर्स में यूज करिए, विंटर में विंटर के हिसाब से आप कपड़े लीजिए, और है ना, उसी हिसाब से आप थोड़ा भी जो बारिश है या उसमें अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसमें ब्राइट कलर्स भी पहन सकते हैं।
मगर अभी जैसे गर्मियां आ रही हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ, लोगों को वही बताती हूँ कि पूरे लाइट कलर्स आप पहने, उसी हिसाब से आप ड्रेसअप हो। पहले भी हम लोगों ने उस जमाने में, जब ये चीजें नहीं थी, इतना फैशन नहीं था, उस टाइम भी लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार हुआ करते थे। और बहुत ही आपने देखा होगा कि इतने परफ्यूम्स और ये सब नहीं होते थे, तो वो गुलाब के फूल और मोगरे के फूल और चमेली के फूल से अपने आप को सजाया करते थे। और उसी तरह से वो लोग अपने आप को ड्रेसअप कर रहे होते थे, जो बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी हम वो, ये नहीं है कि आप अभी एकदम दिन में निकल रहे हैं तो इतने ब्राइट कलर्स के पहन के चले जाएं, तो जो आंखों को भी आपको लगता है कि अरे ये देखो, दिन में ऑरेंज कलर, रेड कलर या इस कलर के ब्राइट कलर्स नहीं अच्छे लगते हैं। वो चीज आप पार्टी वेयर्स के, आजकल तो हर चीज का ये है कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो अलग तरह का ड्रेसअप होना है, शादी में जा रहे हैं तो एक अलग तरह का। तो मौसम के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से उस तरह से अपने आप को ड्रेसअप होना चाहिए। चलिए, बहुत खूब। अच्छा, जैसे कि आपने अभी पहले जिक्र किया था कि आप अपनी मदर के किफायती स्टाइल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, कि आपके पास जो घर पे जो एग्जिस्टिंग कपड़े होते हैं, अगर जैसे किसी की शलवार खराब होगी तो आप उसका कुर्ता दुपट्टा ना डिस्कार्ड करें, तो ये एक आपका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था। उसके अलावा जैसे काफी लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश होते हैं, जिनमें एक नेचुरल फ्लेयर होता है फैशन का, तो इसके अलावा आपके कोई और इंस्पिरेशंस हैं जिनसे आप जिनके स्टाइल से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हैं? देखिए, जो भी अच्छा ड्रेसअप होता है, जो भी अच्छा लगता है, जो भी उससे हम इंस्पायर होते हैं और उन्हीं को देख के लगता है कि अरे हाँ, ये कितना अच्छा ड्रेस है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपनी बेटी, बहू, फ्रेंड, रिश्तेदार, जो भी हो, जो अच्छे से ड्रेसअप होता है उसको हम देख के खुश होते हैं कि हाँ भाई, कितना अच्छा ड्रेसअप हुआ। और हम लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं और कोशिश ही करते हैं कि हाँ भाई, इसकी भी तारीफ करें जिसने इतने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करा है और इतनी अच्छी लग रही हैं। तो इंस्पायर तो जो भी अच्छा ड्रेसअप होता है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। और मतलब फैशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक लड़की की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए? अच्छे कपड़ों की कॉन्फिडेंस को लेके कितनी कितनी इम्पोर्टेंस है? क्या सना, सॉरी। जी, मैं कह रही थी कि फैशन की एक लड़की की जिंदगी में फैशन की इम्पोर्टेंस उसके कॉन्फिडेंस को लेके कितनी है, कि क्या अच्छे कपड़े पहनने से उसकी कॉन्फिडेंस पे फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आप अच्छे कपड़े पहन के ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप अच्छा ड्रेसअप होके, चाहे जो भी, और मैं तो खुद बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलती हूँ कि तुम इतने महंगे कपड़े बनाओ या इतना ये सब करो। आप अच्छे कम उस कॉटन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हैं, बहुत अच्छे से आप ड्रेसअप हो सकती हैं। और जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप बहुत हैवी कपड़े पहने या हैवी ड्रेसेस पहने या वो करें। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जहाँ आपके पास जो भी, मैं अपने जो भी मेरे आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको सबको ये नहीं कहती हूँ कि नहीं तुम इतना हैवी, हालांकि मैं बना सकती हूँ, मगर मैं बिल्कुल कभी नहीं चाहती हूँ कि वो लोग बहुत महंगे ड्रेसेस बनाएं। कम से कम उसपे मुझे लगता है कि आप लीजिए, आप उसी ड्रेस को खूबसूरत बनाइए, उसी ड्रेसेस को आप ऐसा बनाइए कि वो आपको अच्छे लगे, आपके ऊपर अच्छे लगे, आप में उसमें कॉन्फिडेंस आए। कभी कभी हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि आप खुद लगता है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, ये तो पहन के मुझे खुद भी आपका ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरा इससे कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। तो वो ड्रेस ही नहीं तैयार करें या वो ड्रेसअप भी नहीं हो जिससे आप में कॉन्फिडेंस कमी लगे। हमेशा ड्रेसअप ऐसा हो कि आप, मैं खुद अपने आप में कहा, हाँ, मैं ये पहन के लोगों में बैठ सकती हूँ, मैं लोगों में बैठ के जा सकती हूँ। सही ये नहीं है कि आप बहुत पतले कपड़े पहने हैं, बहुत फिटिंग के कपड़े पहने हैं। इसलिए हर तरह के लोग होते हैं, उनके सामने हमें जाना होता है। तो मैं अपना ये समझती हूँ कि जब भी आप लोगों में जाएं तो आप अगर पतले से कपड़े पहनेंगे तो आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कह रहे ये मेरे सब बॉडी दिख रही है और इतने लोगों में मैं उठ रही हूँ, तो आपको खुद बुरा, जागने के बाद आपको खुद फील होगा। तो कोशिश ये करिए कि ऐसा ड्रेसेस पहने जिसमें आप में कॉन्फिडेंस आए और आप लोगों में उठ बैठ सकें। तो जैसे कि मैंने खुद देखा है, आपके इंटरेक्शंस जो होते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, आप बहुत अच्छी तरह सबको एडवाइस करती हैं कि किसको उनके हिसाब से क्या पहनना चाहिए।
कोई ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताइए आपके किसी क्लाइंट के साथ कि आपने कभी किसी को कोई एडवाइस दी हो लेकिन वो ना राजी हुई हो वो एडवाइस लेने की। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई मजेदार किस्सा। सना, बहुत से लोग होते हैं, मेरे साथ ये होता है कि मैं जो भी ऐसा मुझे कमी लगती है एकदम मैं बोल देती हूँ। तो बहुत से लोग आते हैं कि आप हमें हमारे हमें बहुत अच्छी फिटिंग दीजिए, तो मुझे वो वर्ड बहुत अजीब सा लगता है कि मैं आप बहुत हेल्दी हैं और आप है ना, मुझे पता है कि आपके ऊपर इतने फिटिंग के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, और नहीं वो सिलवा के लेके जाती हैं कि नहीं नहीं हम मुझे फिटिंग चाहिए, फिटिंग चाहिए। और उनको खुद ही फिर एक दो कई बार मैंने उन लोगों को समझाया कि देखिए मैं खुद बहुत लूज कपड़े पहनती हूँ और ये करती हूँ, और अभी आजकल ना अच्छा रहता है। तो कहे नहीं, हम तो जो आपसे कह रहे हैं आप वही करिए, हम तो ऐसे ही पहनते हैं और हम ऐसे ही पहनेंगे। देखा ठीक है, आप पहनिए। और अब मुझे इतनी खुशी होती है कि जब वो आती हैं, जब मैं कहती हूँ थोड़ी सी मैं आपका इसको फिटिंग कर दूं, नहीं नहीं रुखसाना, अब तो मुझे ना यही कपड़े अच्छे लगने लगे हैं। और तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, उनको जो हमारे बनाए हुए कपड़े, उनको खुद एहसास हुआ कि हाँ मुझे ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। और ऐसे लोग के नहीं जो बिल्कुल कहते थे कि नहीं हमें तो फिटिंग के चाहिए, गला हमारा ऐसा होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत उनको बिठा के यही कहा कि देखें आप ये वाला आपके ऊपर नेक अच्छा लगेगा, इतनी स्लीव्स अच्छी लगेंगी, ये फिटिंग आपके ऊपर ये वाली अच्छी लगेगी, थोड़ी लूज फिटिंग का। तो अब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब वो आके कहती हूँ, बताती है हमारे जो मास्टर हैं कि नहीं मेरे कपड़े लूज बनाइए। और जो दुबली पतली लड़कियां होती हैं उन पे अच्छे लगते हैं, फिटिंग वाले कपड़े भी अच्छे लगते हैं। और मैं उनको ऐसा नहीं चाहती हूँ कि नहीं वो दुबली पतली हैं उसके बाद भी वो ढीले ढीले कपड़े पहने या कुछ करें, मगर बस जो पहने वो सूट करे उस पे। वो मुझे लगता है कि अपने आप को ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए कि जो आपके ऊपर आपको सूट करे, जिसमें आपको बैठ जाके आप में कॉन्फिडेंस आए। एक आजकल का बहुत करंट टॉपिक है जो कि मैं भी काफी आजकल अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक कॉन्सेप्ट है फास्ट फैशन का, जिसमें यही होता है कि आजकल हम मॉल्स जाएं तो मॉल्स में दुकानें भरी हुई हैं और सेल्स पे सस्ते से सस्ते कपड़े हो रहे हैं जो कि लोग बस खरीदते चले जाते हैं, चाहे उनको उन कपड़ों की जरूरत हो ना हो। लेकिन ये फास्ट फैशन जैसे फास्ट फूड था कि वो सस्ते प्राइस में बहुत अट्रैक्टिव चीजें जो ऑफर करते हैं, इससे इकोनॉमी तो बहुत बूस्ट हो रही है गवर्नमेंट की, लेकिन इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मतलब बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है फास्ट फैशन के चक्कर में। तो हाँ पेवन में आपका बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि जैसे आप हैंडलूम्स पे जितने लोकल मटेरियल ज्यादा से ज्यादा आप यूज करते हैं और लोकल वर्कर्स को ही आप अपने सामने ही सबको काम पे लगाती हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी कि मतलब हम लोग को ये फास्ट फैशन मॉल्स में जा रहे हैं तो बस सेल्स पे रैक्स भरे हुए हैं कपड़ों के, मतलब किस हद तक ये चीज मतलब बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक चीज ये बढ़ती चली जा रही है हम लोगों के यहाँ लाइव्स में। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, जैसे मॉल्स में मैं भी अक्सर जाती हूँ, मुझे थोड़ा चेंज के लिए जाती हूँ कि हमें भी, मगर जो वहां पर जो मुझे लगता है कि जिनका फैशन नहीं रहता है और वो चीजें वो लोग खरीद रहे होते हैं ये सोच के कि नहीं अरे ये तो सेल में हम खरीद लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें नहीं जाना चाहिए। वो उस टाइप के कपड़े होते हैं जो आपको उस टाइम तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, फिर बाद में आपको लगता है कि अरे ये क्यों हमने ले लिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे कपड़ों पे वही कपड़े लें जिसकी जरूरत हो। मॉल में भी आपको बहुत सेल लगी थी, मगर हम लोगों को जब ही जाना चाहिए जब हम लोगों को जरूरत है। और उसमें सेल वाले कपड़ों में अक्सर ऐसा लगता है, अक्सर मैंने करा कि कभी कलर फेड हो गया, कभी कुछ ऐसी कपड़ा उसका अच्छा नहीं निकला। तो अक्सर ये होता है कि हम लोग उस पे उस टाइम तो हमको वो अच्छे लग रहे होते हैं कपड़े कि हाँ ये सेल है इसमें हम ये खरीद लेते हैं, मगर बाद में हमें आके अफसोस होता है कि हमने क्यों खरीदा। आप मॉल में सेल का जब भी आप यूज करिए कि जब आपको लगे कि हाँ ये बहुत जरूरी है और हमें ये जेन्युइन सेल है, ये जेन्युइन कपड़ा है, उसको भी उसमें भी आपको देख के, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास उस तरह का कपड़ा हो कि जो मैं ज्यादातर, हालांकि मेरे साथ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हुई है कि भाई कलर फेड हो गया या कुछ हुआ, तो अब मैंने ज्यादातर उन लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि देखिए हम लोगों को वो लोग देते तो इस तरह से हैं, मगर हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं।
तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी कपड़ा लें बहुत सोच समझ के, चाहे आप बुटीक से लें, चाहे किसी मॉल से लें या कहीं से भी लें, तो उसका आप पे जाइए कि उसका मटेरियल कैसा है, उसकी स्टिचिंग कैसी है। ये नहीं कि सेल में है तो हमने उठा लिए, चाहे वो हम हमारे यहाँ से क्यों ना लें, मगर सब सोच समझ के कपड़े लें। अच्छा, बिल्कुल सही। चले, अच्छा आप ये बताइए कि आप जब पैवन पहुंचती हैं दिन में, तो आपका एक टिपिकल वर्क डे कैसा होता है? हाँ, जब मैं पैवन पहुंचती हूँ सुबह, तो मुझे बहुत कुछ पहले से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने आप को यहाँ पर। इसलिए पहले सोचती थी कि जो लोग काम करते हैं वो घर को ऐसे ही छोड़ देते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं, मगर मेरा दिल चाहता है कि नहीं, जब मैं जाऊं तो मैं पूरा अपना घर का भी सब सेटअप करके जाऊं, और जब मैं वहां पहुंचूं तो ऑलरेडी मुझे भी एक अच्छा से एटमॉस्फेयर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जो जो भी लोग होते हैं जो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, और तो उनको देख के ही अच्छा लगता है। और फिर अपना वक्त इस तरह से गुजारती हूँ कि अपना सबसे पहले तो जो भी हमारे वहां पर जो वर्कर्स हैं उनसे सलाम दुआ होती है, फिर उनके साथ बैठ के जो भी आज के जो भी ड्रेसेस का होता है उसका उनसे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। उसी बीच अगर कोई आ जाता है तो कोशिश ये करते हैं कि सब उनसे हंस के मिले, मोहब्बत से मिले, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छी फीलिंग हो कि हम लोग सही जगह आए हैं। और ये मैं अपनी यहाँ की लड़कियों को भी बहुत कुछ देती हूँ, बताती हूँ कि जो भी आए तो उससे बहुत अच्छे से उसको वेलकम करो, उसको अच्छे से बिठाओ। और बड़ा अच्छा लगता है जब बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं, जब आप नहीं थी उसके बाद भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से हमसे बात करी और मिली। और बस वहां जाके एक अच्छी फीलिंग होती है। बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, कुछ हम लोगों को जरदोजी वर्क चल रहा होता है, कुछ ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, तो उसमें फिर तो कब टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम चला जाता है, वो टाइम भी कम पड़ता लगता है। मगर जो काम चल रहा होता है तो उसको देख के जो हो जाता है, जो चीजें तैयार करी होती है, तो उसको देख के एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हम जैसा चाह रहे थे ये वैसा ही बना, वैसा ही मिला। तो हाँ। बहुत खूब। अच्छा, पैवन में वही है कि आपका सबसे ज्यादा मकसद रहा है कि आप लड़कियों को ट्रेनिंग दें इस चीज की, कि मतलब उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लड़कियों की भी बढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट करके। तो इस लिहाज से आप और भी वहाँ बहुत ज्यादा अपने शहर में और प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हुई हैं, जैसे कि चैरिटी बाजार्स में एक परी बाजार जो बहुत मशहूर आपके शहर की, भोपाल की है, जिसमें आप इन्वॉल्व हुई थी। और अब आप एक और प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हुई हैं कि आप एक बहुत जो फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब, उसकी आप अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी हैं आपके पैबंद के अचीवमेंट्स की वजह से। तो आप पैबंद को कैसे और इस तरह से और आप कैसे उसको हाईलाइट कर रही हैं अपने वर्कर्स के कंडीशंस को इन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? हाँ, जब ये पैबंद शुरू हुआ तो ये हो रहा था कि मेरा पूरा इंटेंशन था कि जो हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, गरीब लड़कियां हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिनके उनको तो पहले मैंने वो एक दो लड़कियों को करा, उन्होंने फिर दूसरी लड़कियों से इस तरह से काफी लड़कियों ने एक दूसरे को बताया कि यहाँ ये इस तरह का भी काम हो रहा है, यहाँ पर ये भी हो रहा है। तो उससे काफी लड़कियां जुड़ी, काफी लड़कियां आई, और उन लोगों से कहा कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। फिर उनको मैं 2 घंटे का टाइम देती थी कि भाई पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपनी जो पढ़ाई वो शुरू करें, और ये 2 घंटे का टाइम आके सीखें। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो काफी दूर से आती थी, और अब मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि वो लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो पढ़ भी रही हैं, अपने घर का भी देख रही हैं, वो अपने घर में भी वो सिलाई कढ़ाई जो कर रही हैं। और जब वो अब आती हैं तो मुझे यकीन ही नहीं आता है कि उसमें कई लड़कियां ऐसी हैं कि ये वही बच्ची थी जो आई थी। तो उससे वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि हाँ। और इसी तरह से जब लोगों को पता चला, और जहां भी मुझे कई जगह में गई, जब मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ काम हो नहीं रहा है इन बच्चियों के लिए या इस तरह, तो फिर दूसरे जहां जहां हुआ उन लोगों ने, उनको लगा कि हाँ भाई ये कुछ करना चाह रही हैं, तो उन लोगों ने खुद कांटेक्ट करा कि हम चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलके काम करें। उसमें एक बेगम साहब भोपाल है, और उसमें हर साल परी बाजार लगता है। अभी 4 सीजन चौथा परी बाजार लगा था। उसमें इतने चेंजेस आ रहे हैं कि जो लड़कियां, यहाँ तक कि कोई बच्ची जीप चलाती थी घर में, अब वो देख रहे हैं कि उसने रिसर्च कर ली जीप के बारे में, अब वो खुद जीप चला के आ रही होती है। तो वो देख के लगता है कि हाँ, कितना इस बच्ची में कॉन्फिडेंस आया है।
और दूसरे भी काम जो लड़की घरों में बैठ के काम कर रही है, जिनको घरों में काम पहुंचा दिया जाता था, हम लोगों ने उनको निकाल के इस परी बाजार में बिठाया कि भाई तुम लोग यहाँ आओ, तुमको सब लोग देखेंगे कि तुम क्या क्या काम कर रही हो। तो ये सब हम लोगों को ये लगा कि फिर ये जो इनर व्हील क्लब भोपाल राइज, इनर व्हील और भोपाल राइज है, उसमें भी ये है कि अभी अब मैं लास्ट मंथ ही प्रेसिडेंट बनी हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि स्कूल्स पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि जो बच्चे स्कूल के उनके हाइजीन पे, हाइजीनिक मतलब कैसे अपने उनको है ना हम लोग पूरा सिखा सकते हैं कि कैसे आपको साफ सुथरा रह के स्कूल में आना है, और उनकी जो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जो भी कमी है, हम लोग वो करने की दूर करेंगे। और इस तरह से काफी लोग अब जब ये काम करा है तो काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके जुड़ते हैं और हमारे यहाँ के जो भी काम कर रही हैं लड़कियां, उनसे बात करते हैं, उनके इंटरव्यूज लेते हैं, उनका बहुत खुशी होती है कि उनका उनका कॉन्फिडेंस देख के। तो काफी हद तक बहुत शुक्रिया आपका, इतना नोबल मिशन है ये कि लड़कियों को एम्पावरमेंट आप दो तरह से देती हैं। एक तो कि यू मेक देम लुक गुड विच इन टर्न मेक्स देम फील गुड, तो एक इस तरह से आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं, और दूसरा ये कि आप इतनी गरीब लड़कियों को फैसिलिटेट कर रही हैं कि उन लोगों की जिंदगियां बढ़ जाएं, और अल्लाह ताला आपको आपके इस मिशन में और कामयाबी दे। आमीन। Ms. Samira Mohsin, shall we open up for some questions now? If we have time. Thanks for Hello. that, Sana. Naini, we do have a few minutes, and we did want to take a few questions. जैसे अगर कुछ ladies हैं जो कुछ खास questions अगर पूछना चाहें अपनी dressing sense को लेके कि what sort of clothes, किस तरह के कपड़े वो मतलब उन्हें पहनना चाहिए मौसम के हिसाब से, अपनी occasion के हिसाब से, या even any कोई भी specific, अगर आपकी कोई design related queries हो, ईद आने वाली है, उसके रिलेटेड आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछना है अपनी वार्डरोब को लेके लेडीज, तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम। मिसेस रुखसाना अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स। आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं रुखसाना आंटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने बिजी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी आपने बातें हमें बताई, जो खासतौर पे जो हम मतलब आपने कोई वो बड़ी बड़ी बातें नहीं की वुमेन एम्पावरमेंट पे, बल्कि वो बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया कि आप किसी को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म अरेंज करें, और जिस तरह से आप पेवेंट पे काम कर रही हैं और जो आप जिस तरह से उन बच्चियों को खासतौर पे कि आपने इस चीज़ पे फोकस किया कि तालीम से उनका सिलसिला ना टूटे, तो इट्स रियली कमेंडेबल। आप मुझे ये बताएं, जो हम जैसी खवातीन होती हैं जिनके मसले होते हैं, जो पेयर शेप बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है जिनका, तो उसके ऊपर ज्यादातर क्योंकि हर वक्त फ्रॉक्स और फ्लोई ड्रेसेस तो इन नहीं रहते, तो वो क्या चीज हो जो उनको उनकी बॉडी पे सूट भी करे और वो अपनी उस बॉडी शेप पे कैरी भी कर सके। जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि नहीं इट्स ओके, मैं ये कह रही हूँ कि आप पेयर शेप जो जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए क्या कट्स को सजेस्ट करेंगी? सना, कैन यू रिपीट माय क्वेश्चन? आई गेस आवाज का इशू आ रहा है। जी, आई थिंक उनको आवाज नहीं आ रही है। इनका सना जुनैद का ये सवाल है कि जैसे आपने ये सजेस्ट किया कि जिन लोगों को पेयर शेप बॉडी होती है कि वो ढीले कपड़े पहने, लेकिन हर वक्त ढीले कपड़े फैशन में नहीं होते हैं, तो और क्या टिप्स हैं जो आप जैसे पेयर शेप्ड लोगों को कि जिन रेकमेंड कर सकती हैं? मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही है। सना आप बोलेंगी फिर? आवाज आ रही है? जी,
पेयर शेप्ड बॉडीज के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगी कि किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए? देखिए उस एक सेकंड जी मैं 1 मिनट और वो कर रही हूँ, अगर आ जाता है तो 1 सेकंड से ना। किस तरह के किस बॉडी का कर रही हैं सना? क्या शेप में? पेयर शेप्ड। देखिए उस तरह का आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी अगर कुछ शेप अगर नहीं हो तो कुछ भी जैसे लूज स्टाइल, हर उसमें मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा जो लूज स्टाइल होता है वो काफी हद तक हर तरह के बॉडी शेप के लिए सही रहता है। उसमें आप थोड़ा सा ऊपर भी योक लगा के या कुछ करके उस तरह से आपके वो पहन सकते हैं। और अपने आप का मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। सना 1 मिनट आप होल्ड करेंगी? हेलो हेलो, जी 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 बताइए। 1 मिनट होल्ड कर, मैं इसका देखा। आई थिंक कनेक्शन इशू हो रहा है। अब आ रहा है सना? अच्छा जी अब आ रही है आवाज जी। सना कुछ पूछ रही हैं? जी अच्छा आपके पास एक और सवाल है कि हाउ इज पेवन गोइंग टू कंटिन्यू? आपके आगे की क्या प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर? अगले 5 साल में पेवन को आप कहाँ देख रही हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब थोड़ी आई आ रही है थिंक सना। सो सॉरी, जी आवाज आ पता नहीं यहाँ पर बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सना थोड़ी आ रही है आवाज। अच्छा भाई Sana, if you don't mind, आप can I answer that question? जी जी गो अहेड। जी, I think till Mrs. Ruxana का वो हो रहा है connection, तो I think that is one thing about Pavan that I would like to say, that obviously Pavan is very unique to Bhopal, and whenever we see any organization which is unique to any particular city, then I think and especially what Mrs. Ruxana has done, that she's been having moved from Saudi after being away from India for 40 years. She has moved back to her home country. So whenever we do move back, first of all, I think it's a very big thing that she is still in the business after 8 years of establishing Pevan. So I think that itself is a very big thing. So we जहाँ तक कि next 5 years का सवाल है, I think पेवन का जो मतलब जो क्रक्स है कह लें, वो यही है कि her intention was always so pure that she always wanted the girls who are coming, for them to be empowered and for them to learn a skill so that they can go back and and run their households. So I think that should always remain to be the essence of Pevan. Because मुझे लगता है कि that is what is responsible for the success of Pevan, because of the niyat of Mrs. Ruxana. कि नहीं, the number one thing will be to to empower these girls to run the household of all of these people. And that is why even during COVID, when the business was shut for so many months, we were still paying the salaries and everything, because we wanted these households to run. I think that is what we should we should never forget, a pure intention before we start anything. And she has been wanting to expand Pevan for a very long time. So everyone, Pevan has already gone global. Mummy sends her outfits to the US, to Canada, to UK, to Saudi. So this is what we see. It should grow, of course, and it should
it should grow. I mean, we need to, probably work much more on our social media presence, and for ordering online and stuff like that. So yeah, hopefully we are here to stay. Inshallah. अब थोड़ी आवाज आ रही है क्या समीरा? हेलो जी हमें आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है आवाज? बहुत पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पर। हम लोगों ने बहुत पहले से कोशिश करी कि बहुत ही अच्छा रहे, मगर कुछ प्रॉब्लम है कि जो सही हम लोगों का आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, that's okay, that's absolutely fine, क्योंकि वैसे भी यहाँ 2:50 हो रहा है, तो I think we will end the session right now. Usually हमारा session 45 minutes का होता है, and we have a very interesting question from Canada from Mrs. Firoza. Gigi, absolutely, home linen is a fantastic idea. In fact, just last week, Mummy was showing me some designs of home linen, and we were surprised, and I was like, this stuff really needs to stuff needs to come out, and we need to look into getting it abroad. So absolutely, आप अपने home linen orders भी हमें दे सकती हैं, of course. And thank you once again to each and every one of you. Thank you so much, Mrs. Rukhsana. Thank you so much, Sana. As usual, it was an excellent interview, and we have turned to you so many times. नहीं समीरा, मैं भी बहुत जो भी लोग हैं, जो लोग उसमें भी जो पार्टिसिपेट करा, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं जिस तरह से होना चाहिए था, वो अभी बाद में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। और अगर आपके कुछ इंक्वायरीज हैं तो प्लीज आप मुझे भेज सकती हैं, आप मुझसे पूछ सकती हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत अपनापन लगेगा अगर आप लोग जो भी पूछेंगी मैं उसका जरूर जवाब दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आप लोगों को बताने में, और बहुत, वैसे तो ये इतना कम टाइम में बहुत कुछ हम लोग बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोग भी आराम से मुझसे बहुत कुछ पूछ सकती हैं। और उसमें जितने भी मेरे अभी उसमें फरोज़े भी नजर आ रही हैं, फिजा, मेरी जो लोग भी हैं, मैं उन सबको बहुत शुक्रिया कहती हूँ कि उन्होंने आए और थोड़ा सा टाइम निकाला और सुना, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसमें मेरी सिस्टर भी हैं, सब हैं। और बस बहुत कुछ चीजें कहने को हैं, बताने को हैं, मगर टाइम कम है और थोड़ा सा मुझे इसकी प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर कुछ इंटरनेट वगैरह सही से काम नहीं कर रहा है, और मुझे वही फिक्र थी। और प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज हैं जरूर आप पूछिए, मुझे बहुत अपनापन लगेगा और बहुत खुशी होगी। और बहुत शुक्रिया आप सबका, और आपकी मोहब्बत का, आपके ख्याल का। और इंशाल्लाह हम लोग फिर जल्दी ही कभी मिलेंगे। और मुझे आप लोगों के भी ड्रेस तैयार करने में मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हाँ, कोई भी अगर कुछ बनवाता है तो मुझे बहुत खुशी बस मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं उन लड़कियों के काम आऊं। और जो लड़कियां पहले जमाने में जरदोजी वर्क भी जो था वो बहुत ही पुराने स्टाइल में कर रही होती थी, और अब वो लड़कियां, मैं उन लड़कियों को भी चाहती हूँ, उन लड़कियों को भी काम मिले जिसको मैंने सिखाया है और जिनको मैंने ट्रेन करा है। वो भी मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी काम मिले, और वो लोग भी अपना जो हुनर है वो आप सबको बताएं। और आप लोग सब दुआ करिए कि वो जो हम लोगों का इंटेंशन है, जो एक अच्छी नीयत से, अच्छे इंटेंशन से हमने ये शुरू करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा अपना वो था कि आप कोई भी चीज अच्छी नीयत से शुरू करो तो उसमें अल्लाह अपने आप रास्ते निकालता है और अल्लाह मदद करता है। वो चीज मैंने देखी, सुनी। पहले तो मैं सुनती थी, मगर मैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का, आने का। थैंक यू सो मच। और फिर इंशाल्लाह हुआ तो फिर जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं समीरा, बस मैं थैंक यू कर रही थी आंटी को। एंड ग्रेट मदर एंड ग्रेट डॉटर। बस आंटी, आपने ये पढ़ो एंड पढ़ाओ की टीम के लिए ड्रेस डिजाइन करना है आपने एक्सक्लूसिवली। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच निखत। प्लीज जस्ट
a final wrap up. Thank you to each and every one of you who tuned in to our special Women's Day special. A happy Women's Day to each and every one of you once again, and thank you for logging in. So many familiar and beautiful women. Thank you to each and every one of you. All right, Assalamu alaikum, bye bye. Okay, Allah Hafiz. Allah Allah Hafiz. Hafiz.